Very good morning, children. Just yesterday, I would like to tell you the posting of opening entry. Posting of opening entry into the ledger. So, my dear children, just you can see over here, posting of opening entry. First, we have to know what is the meaning of the opening entry. The meaning of the opening entry. Just we have to record all the transactions. Firstly, to record the balances of the accounts at the beginning of the year is called opening एंट्री. आप ये देख रहे होंगे बेटा कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है. तो ओपनिंग एंट्री जो होता है वह होता है द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर इन जर्नल इज टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेज दिए रहते हैं. उनको एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. द बैलेंसेज ऑफ द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड opening entry. Remember, again now listen it carefully. जो हमारे भिन्न भिन्न संपत्ति और दायित्व होते हैं उनके खातों को हम जो उनका प्रारंभिक शेष है उसे नए साल के शुरुआत में हम जर्नल में फर्स्टली, क्योंकि इन ईच ईयर प्रत्येक साल जर्नल इज द प्राइमरी बुक जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे ही हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं बेटा. द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर, पहली एंट्री जो होती है प्रत्येक साल की वो क्या होती है इन जर्नल टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द firm at the beginning of next year is called opening entry. मतलब प्रत्येक साल जर्नल में जो होता है हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रारंभिक शेष होता है या पिछले महीने का पिछले साल का जो शेष होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों, भिन्न भिन्न प्रकार के जो अकाउंट खोले गए होते हैं लेजर में, उनको हम जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम ओपनिंग एंट्री करते हैं. और उसका जर्नल रिकॉर्ड का जो ओपनिंग एंट्री है वो हम कैसे करते हैं, चलिए हम लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे और क्या करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक उदाहरण देते हैं. Now assume that there is the balances given in information in the question. Cash is equal to 5,000, bank 10,000, bank 10,000, bills receivable 5,000,
Suppose that the personal account given Ram, David. Just this one is the David written 3,000. Mohan credit. Mohan, suppose that information given credit 6,000. Bills payable is equal to 2,000. Furniture and plant, whatever, so the balance is given. How will you record these transactions as opening entry? What are the balances given? They are the debit. Whether they are debit, all the assets, it has been told you in real account. In real account, all the assets, they are debit. So you can write cash account debit, cash account debit, bank account debit, bills receivable account debit. Because of these are the debit, whether the information given or not debit or credit, you can write because of all the assets debited in real account. Debit. Ram debit given. So you can Ram also write here. Ram debit. And Mohan credit. So you can write Mohan to Mohan. To indication for the credit to Mohan and 2 bills payable. Amount just can be posted. Cash account 5,000, bank account 10,000, bills receivable 5,000, Ram debit 3,000, and in credit column Mohan 6,000, and bills payable 2,000. According to rule of the accounting treatment in journal, both the debit or credit column must be equal. It affects the two aspects on the opposite direction. It affects the two accounts according to the dual aspect of the principle given. So now how will you calculate? Just the difference between the assets and liabilities is called the capital. Because of in accounting equation, you know it very well. Assets is equal to liabilities plus capital. So balancing figure, capital is equal to assets minus liabilities. Suppose that you can write over here capital. Capital. Just add this one. All the assets can be added. These are added. 10,000, 23,000. 10, 5, 50, 520 and 3. 23,000 minus 8,000. Is equal to the balancing figure, that is the 15,000 as a capital. Means from the assets, total of the assets minus total of the liabilities is equal to capital. Means the Mohan's account and bills payable account credit side of the column
will be deducted from the total assets, cash account debit, bank account debit, bills receivable account debit, RAM account debit। इससे जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कैपिटल अकाउंट। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को मैं हिंदी में बताता हूँ। बेटा जो ओपनिंग एंट्री प्रारंभिक लेखा जो होता है, ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक लेखा। तो प्रारंभिक लेखा प्रत्येक साल जर्नल में रोजनामचे में प्रारंभिक लेखे की एंट्री की जाती है। जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट्स संपत्तियां हैं व्यवसाय में, जो दायित्व हैं, दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है और एसेट्स को डेबिट किया जाता है, और दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक उदाहरण दिया है, कैश। एज्यूम दैट, फर्ज करो कि कैश बैलेंस आपका 5000 का दिखाया जा रहा है, बैंक बैलेंस 10,000 का दिखाया जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल 5000 का है, राम डेबिट 3000 का है और मोहन क्रेडिट 6000 का है और बिल्स पेबल जो है वो 2000 का। ऐसे करके इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप इसका प्रारंभिक लेखा कैसे करेंगे? तो जर्नल का आप जानते हैं ऑल द एसेट्स डेबिट। एसेट्स में हमारा कैश अकाउंट डेबिट हमने लिख दिया 5000 से। फिर बेटा बैंक अकाउंट डेबिट हमने 10,000 से लिख दिया। फिर जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 हमने लिख दिया। फिर हमारा राम इंफॉर्मेशन में दिया गया है डेबिट बैलेंस है उसका, तो राम को डेबिट करके 3000। अब मोहन को क्रेडिट बताया जा रहा है, तो टू मोहन क्रेडिट कॉलम में हमने लिख दिया 6000। फिर टू बिल्स पेबल 2000। जैसा कि आप जानते हैं दोहरा डबल एंट्री सिस्टम के तहत दोनों साइड जो होता है क्रेडिट और डेबिट इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम जो बैलेंस फिगर निकालेंगे पूरा एसेट्स को, आप हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बता चुके हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें कैपिटल पता करना है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को इधर लाए इक्वेशन के माध्यम से, तो हमारी टोटल लायबिलिटी 8000 रुपये की है और टोटल एसेट्स हमारा 23,000 का है, 23,000 का है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 15,000 का, वो हमारा क्या होगा? कैपिटल। ये होता है ओपनिंग एंट्री। क्लियर? अब इसका नरेशन भी आप लिख सकते हैं कि ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल। ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल। This way you can give the narration of such entries. And how these are posted into the ledger? Just for suppose that you are going to open the cash account. You are going to open the cash account. These are the balances of the 1st April 2019. Balances of the 1st April 2019. 1st April 2019. So draw the line of the two equal part of the ledger. Suppose that you can write the, suppose that you have opened the cash account. In cash account, this one is the debit, this one, and this one credit. So this one is the column of cash account, this one is the debit column. Date, just you can write 1st April.
टू बैलेंस, इट शोज एज ए टू बैलेंस। कैश अकाउंट 5,000। In same way, you can open the bank account. Just now here, suppose that you are going to open the bank account date, and on 1st April, two balance. In bank balance 10,000. Same way, just you have to open the bills receivable account. You can open the bills receivable account. Bills receivable account. Just in date column, April 1st. Because these are the debit balance, this one is the debit and this one credit. So you can record two balance. Two balance bills receivable given 5,000. 5,000, my dear. I think you are getting my board easily. Then after RAM account you are going to, and the transaction during the year whether given. So these are recorded. So we have to open the account. What is that account? First year the balance is two balance, RAM account. RAM account open, two balance in RAM, debited 3,000. And you are going to open Mohan account. Suppose that Mohan account, here you can open the Mohan account. Mohan account, draw the column of the ledger. It has been explained. Just this one is the credit balance. Now in credit column April 1st, buy balance. Buy balance 6,000. Such like bills payable. Bills payable account you are going to open. You can write because of this one is the credit balance. Bills payable account. Buy balance on 1st April, buy balance given 2,000, and such as capital account you can open, buy balance 15,000. This one is the procedure, and whatever the transaction during the year will take place, such related to such account can be recorded. Clear? In हिंदी बेटा जैसे हमने आपको बताया था कि कैश अकाउंट आपने खोला तो टू बैलेंस करके डेबिट है, हमेशा डेबिट होता है। तो बैलेंस यहाँ पर डेबिट कॉलम में टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके पास 5,000 का कैश हो गया, और अब साल में जो भी ट्रांजेक्शन होगा कैश से रिलेटेड होगा तो कैश अकाउंट में डालोगे, चाहे वो डेबिट हो और चाहे क्रेडिट हो। ठीक उसी प्रकार से बैंक कॉलम में भी आपने टू बैलेंस दिया, डेबिट होता है बैलेंस 10,000 का आपने लिखा, और उसके बाद जो इस साल का ट्रांजेक्शन हो उसे पोस्ट करते चले। बिल्स रिसीवेबल कॉलम को टू बैलेंस करके आपने डेबिट कॉलम में बिल्स रिसीवेबल का खाता खोला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया और टू बैलेंस करके 5,000 लिखा आपने। अब कोई बिल्स रिसीवेबल और मिलती है साल के दौरान तो वो आपका जिससे मिलती है उसके नाम के तहत आप एंट्री करते चले जाएंगे, फिर लास्ट साल के अंत में जाकर के उसका क्लोजिंग बैलेंस बना देंगे जो भी ट्रांजेक्शन। उसके बाद राम का अकाउंट है, राम का अकाउंट आपने ओपन किया, टू बैलेंस पिछले साल का उनके पास आपका पैसा बाकी है वो आपने
3000 रुपये ड्यूज में लिखा हुआ है, और इस साल यदि देते हैं तो पेमेंट करते हैं तो रिसीव करेंगे। और जिस तरह से अगर जो राम मान लीजिए पैसा देते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो बाय कैश करके क्रेडिट करके उतना डिफरेंस, पूरा दे देते हैं तो पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है बेटा। अब आइए क्रेडिट में, मोहन क्रेडिट है, इनको आप पेमेंट आपको देना है। मोहन का अकाउंट आपने खोला हुआ है बाय बैलेंस करके 6000 रुपये बाकी, शुरू में आप अप्रैल में डाल दिए 6000। अब उसके बाद यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है इनके साथ और सामान खरीदते हैं या इनको पेमेंट देते हैं, फर्ज कीजिए 3000 रुपये आपने पेमेंट दे दिया, तो आप क्या करेंगे, मोहन डेबिट टू कैश, तो इधर डेबिट करके इनके नाम में डेबिट का नाम 3000 डाल देंगे, 3000 बैलेंस बचा रहेगा, फिर उसका पेमेंट कर देंगे। इस साल में पेमेंट कर दिए तो कर दिए, ओके। एंड देन द बिल्स पेबल अकाउंट, in bills payable account, when you accept the bill purchasing items from someone, commodity or goods, खरीदा आपने माल और उसके पैसे के स्थान पर बिल आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको अपना या इस बिल का भुगतान करते हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्स पेबल अकाउंट में टू कैश करके 2000 रुपये इसका अकाउंट। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, बाय बैलेंस करके लिखा है, यदि एडिशनल कैपिटल और कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं तो टू कैपिटल कर देंगे, बाय कैश के रूप में करके, और कैपिटल आपकी बैलेंस बढ़ जाएगी। या कैपिटल विथड्रॉ करते हैं तो उस तरह से निकाल लेंगे। ये होता है पोस्टिंग का तरीका। अब कल हम आपको सेल्स बुक और परचेज बुक का, तो आपका लेजर पोस्टिंग फिनिश हो जाएगा माय डियर। और इस तरह से लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। जर्नल एंट्री यदि जानते हैं, बी इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे अधिक से अधिक, तभी आपको ये आएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थैंक यू वेरी मच।